Good evening, students. So we are going to start with a new topic, which is sentence equivalence. That is one section in your examination where you will see that 6 options are given to you and single blank questions would be coming. Unlike your text completion questions, where you were seeing 1 blank, 2 blank, 3 blanks questions, in sentence equivalence, you'll only see 1 blank questions. And for every blank, you'll be given 6 options, out of which it's a compulsion to choose 2 options, right? You cannot choose more than 2. You will not choose less than 2. You'll have to choose 2 options to get those questions correct. Now this task becomes pretty easy. It is actually about identifying synonyms in the options. 90% of the cases, you'll see that the options which can be paired together, those would be the correct option. So let me show you some examples for that. Let's see this pretty simple question which is written here. Just a moment. So here some description is given about the dog. Harriet's dog Bubbles is to dash. Now you will always be given some kind of context, right? अभी कोई context है नहीं यहाँ पे. So is it possible for us to understand what can come over here? Let's forget about the context. First, let's see out of these 6 options, which of the options look similar. कौन से option pair किए जा सकते हैं? A to F में आपको कौन से option related लग रहा है? Large को हम किससे relate कर सकते हैं? Large and big, right? Delicate को हम किससे कर सकते हैं? Frail. Delicate and frail could be paired. Frail is also weak. So B and F can be paired. A and D can be paired. And similarly, I can pair disobedient with headstrong, right? Headstrong एक determined भी होता है, एक positive meaning भी होता है, और एक negative meaning भी होता है headstrong का, which is somebody who is stubborn, who will not change his position, which means disobedient, right? But you'll always see in the questions you'll have some kind of context. इस तरह के questions कभी exam में आएंगे नहीं, right? Harriet's dog Bubble is too what? He can be too large and big. He can be too delicate and frail. He can be too disobedient and headstrong. There'll always be some adjectives or some kind of context which would guide you what kind of options you should be picking up. So in sentence equivalence, basically the strategy that goes is that the first task is to identify pairs in the options. What pair words can be related. पहले आपको वो decide करना है. वो देख लिया तो उसके बाद आपको context identify करना है कि इसमें क्या word fit हो सकता है. तो अभी जिस तरीके से sentence लिखा हुआ है यहाँ पे कोई context created नहीं है. So obviously it's difficult for us to choose any of these pairs. Let's look at the modified version of this question where I think the context is given to us. Harriet's dog Bubbles is too dash to complete the structured training required to become a guide dog for the blind. Now here we have a keyword, structured training. Some adjectives are used to define what kind of training this dog will go through. That is a structured training. If it's a structured training, who would find it difficult to complete it? The one who is, just a moment, let me see what options you guys are recommending. Ishita says if he's disobedient and headstrong. Udit says if it's C and E, which is disobedient and headstrong. So most of you are suggesting C and E, C and E. Kratika says it could be delicate and frail. Naman says it could be C and E. Jamesh, right. So structure training होती है जिसमें आपको कुछ phases follow करने पड़ेंगे. एक structure created है. And you'll have to follow that phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 of the training. A dog who is not obedient, a dog that is headstrong would find it difficult to complete a structured form of training, right? We do not know that this training is endurance intensive. क्या इसमें बहुत मेहनत और efforts लगती है? अगर वो है, तो फिर हमारे keywords क्या हो जाते? Frail and weak हो जाते, right? But structured training है, that means इसमें बड़े नियम कानून से चलना पड़ेगा, right? Which a disobedient dog or a headstrong dog, it would find it difficult to complete a structured form of training. So structured was clue based on which we are picking up pairs, disobedient and headstrong. So in your questions, there would always be a context. हमेशा कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ adjectives and adverbs या verbs define कर रहे होंगे चीजों को, जिससे आपको एक further clue मिल पाएगा कि हमें क्या pick करना है, right? Let's see another version of this question. Now here we are defining that Harriet's dog Bubble is too dash to complete the physically challenging training required to become a guide dog for blind.
Now, if this training is physically challenging, what kind of dog would find it difficult? Obviously, a delicate and frail dog, right? So here, the two words which will go within the context would be B and F. ठीक है, जस्ट टू मेक इट क्लियर इन टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चन ऑल्सो आप देखेंगे वन ब्लैंक क्वेश्चन आते हैं, पर वन ब्लैंक में हमेशा आप देखना 5 ऑप्शंस ही गिवन रहते हैं, A, B, C, D, E. Just 5 options are given to you. Here you will see that 6 options are there. ये मैं इसलिए emphasis कर रहा हूँ. In past I've seen some students making this mistake. They've ticked only one option for these. और यहाँ पे आपको usually check box लिखे आते हैं sentence equivalence में. ऐसे alphabetical A, B, C, D, F नहीं लिखाएगा. There'll be a square box besides these options, and you'll have to select 2 options. You'll have to put cross on 2 options, which will go with the context. आयुषी ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा बताना. Delicate and frail both can go in the context, right? Close synonyms usually GRE आपको पिक करने को नहीं देगा. Very close synonyms of words they'll not give. या तो फिर उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या वर्ड्स थोड़े से दूर के होने चाहिए कि डेलीकेट से कोई थोड़ा सा दूर का वर्ड होगा, उस केस में हम पिक कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन उठाना चाहिए आयुषी. यहाँ पे तो डेलीकेट और फ्रेल बहुत पास है. Disobedient, headstrong are near synonyms. So usually exam will not give you near synonyms in the context, right? जैसे आपने याद होगा टेक्स्ट कंप्लीशन के लास्ट क्लास में हमने देखे थे वॉकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हमें दिए थे, बट हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था. दे वर नॉट नियर सिनोनिम्स. कोई सिडल था, कोई ट्रश था, कोई ट्रैप्स वॉक था. सो ऑल दी वॉक्स वर डिफरेंट. लंबर वॉक था, राइट? सो हर वॉक में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, किस तरह की वॉक, राइट? सो ऑब्वियसली आपको उतना डिफरेंस वाले ऑप्शंस दिए जाएंगे, कभी भी नियर सिनोनिम्स नहीं दिया जाएगा. तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहता था कि सेंटेंस इक्विवेलेंस में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं. ट्रस्ट मी, सेंटेंस इक्विवेलेंस इज द इजीएस्ट पार्ट इन योर एग्जामिनेशन आउट ऑफ text completion, reading comprehension. You will always see that the accuracy level you can achieve in sentence equivalence is near 90-95% if you know the synonyms of the words. If you know कि pairs कौन से identify हो सकते हैं, तो आप बहुत easily pick कर पाएंगे. ठीक है, things become easy. करना ही है समर्थ, आपको 2 ऑप्शंस चूज करनी है, 2 ऑप्शंस पिक ही करने पड़ेंगे इस केसेस में. ठीक है, अगर आपने एक ऑप्शन पिक किया तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा समय. तो सेंटेंस इक्विवेलेंस में ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ओवर हियर, ओवर देयर इन द एग्जाम. आप देखोगे कि ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, बट इन केस आपको कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं एक ब्लैंक के लिए. इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम सेंटेंस इक्विवेलेंस. इफ 5 ऑप्शंस आर गिवन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट कंप्लीशन, एंड इन सेंटेंस इक्विवेलेंस यू विल ऑलवेज फाइंड दैट स्क्वायर बॉक्सेस आर गिवन. ट्रज चेक होता है कि बहुत कॉशियस होके चल रहे हो आप, क्योंकि कंडीशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, हार्श है, तो उसके कारण से बच बच के या कॉशियस होके चल रहे हो. दैट इज व्हाट ट्रज है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. झलक क्या समझ नहीं आया इसमें. देखो, अगर ट्रेनिंग फिजिकली चैलेंजिंग है, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, physical efforts. If it's about physical efforts, this dog would find it difficult to complete it, right? जो कॉन्टेक्स्ट है वो निगेटिव है ना. कॉन्टेक्स्ट निगेटिव है कि ये जो डॉग है, will not be sufficient, या dog doesn't have the capability to cover this kind of training. In this particular case, it's physically challenging, so a delicate and frail dog would find it difficult. In the previous one, a stubborn dog would find it difficult to complete a structured training, right? So the context is negative here, that whatever dog जिसके बारे में बात हो रही है और जो भी ट्रेनिंग की बात हो रही है, वो training is too difficult for him to complete. Now here it was structured training, so stubborn dog would find it difficult, and in this case it was endurance specific or physically challenging. So obviously a dog who is frail and weak, delicate, will find it difficult to complete this kind of training. So अब इसके लिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं सेंटेंस इक्विवेलेंस के लिए, कि आप लोग पेयर्स को आइडेंटिफाई कर पाए. उसके लिए वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप वर्ड स्ट्रेटजी, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी विल क्रिएट अ ब्रॉडर कैटेगरी फॉर थिंग्स, एंड हम उनके रिलेटेड सारे वर्ड्स को ग्रुप करने की कोशिश करेंगे, राइट? कि जैसे अप्रिसिएशन के वर्ड क्या होते हैं, फ्लैटरी के वर्ड्स क्या सारे होते हैं, किसी को इंसल्ट करना उसके वर्ड्स क्या होते हैं, एरोगेंस के वर्ड्स क्या होते हैं.
सो इस तरीके से हम एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स विल क्रिएट एंड ऑल दी वर्ड्स विच आर रिलेटेड विद इट हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जस्ट अ, और आपको अगर सिनोनिम्स पता हो तो आप बताइएगा, इफ यू नो सिनोनिम्स ऑफ दैट यू कैन ऑलवेज. So the first category we are talking about is words related with hate or being unfriendly. कौन से वर्ड्स होते हैं जो हेट या अनफ्रेंडली होने को बताते हैं? क्या क्या वर्ड्स आप लोगों को पता है जो हेट या अनफ्रेंडली होने का बताते हैं? जस्ट अ मोमेंट. आशुतोष सेज हॉस्टाइल, चहक आल्सो इज सजेस्टिंग दैट एनिमोसिटी पायस बिल्कुल कर सकते हैं. सो हॉस्टाइल एंड एनिमोसिटी आर टू वर्ड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर हेट और बीइंग अनफ्रेंडली. संयम डिविसिव, हाँ अगर पॉलिसी डिविसिव है तो लोगों में फूट पड़वा सकती है. सो वी कैन से दैट divisive. Loath is also to hate somebody, right? चिकर एक बार चेक करना. आई एम नॉट श्योर इफ अनएमिएबल एक्सेप्टेंस होता है क्या यूसेज में, मुझे पता नहीं, आप एक बार चेक कर लेना. एमिएबल तो फ्रेंडली है, बट क्या अनएमिएबल यूसेज में आता है क्या? Exacerbated, will use it for different context, Anuraj. Exacerbated is basically when things are going worse, बुरा होते जाना, ठीक है, किसी सिचुएशन का और खराब होते जाना. Acrimony we can take here. Acrimonious या acrimony we can take. Acrimony या acrimonious relationship is where things have gone bitter. मोरो सैडनेस और डिप्रेशन लिया जाएगा पायस, यहाँ हम यूज नहीं करते हैं उसको. अनुष्का डिटेस्ट वी कैन यूज. टू डिटेस्ट समथिंग इज टू हेट इट, सेम एज loath. odious, detest and resent aparna, right? We can use word odious. resent भी कर सकते हैं. churlish श्रेष्ठ would come in the category of insolent, bad behavior, ill mannered. उसके लिए हम चर्लिश को यूज कर लेंगे. अभी हेट और अनफ्रेंडली के वर्ड्स रखना चाह रहे हैं हम लोग. एंटागोनिस्ट रख सकते हैं, बट एंटागोनिस्ट is used. Antagonism आप रख सकते हो इशिता. Antagonist is basically the villain character or the negative character in a role is antagonist. Antagonism हम रख सकते हैं as a term. Acrimony, Vrinda is already taken. We have used it. Abhor we can take Sally. बिल्कुल. To abhor is to hate. Janmesh, loath is already done. We can take that word. Udit, abhor also. Should be detest भी मेरे ख्याल से we have covered. Somewhat dislike, ठीक है, normally word है. आशुतोष, abhor. Antipathy, Anuraj we can keep. Antipathy भी is hostility. किसी के लिए दुश्मनी रखना is antipathy. Right, Alfin, abhor we can keep. We have already taken that. Abhorrence, Ashutosh is there. Anathema is a curse. ठीक है, अगर आप anathema यूज कर रहे हो वैसे रख सकते हो आप इसको टर्म में, because it's source of hate. If you're defining somebody as anathema, that person is basically source of hate. A misanthrope can be used. बिल्कुल माधुरी and Anuraj, we can keep word misanthrope, because misanthrope का मतलब ये one who hates mankind, right? जो एंथ्रोप्स है वो टर्म ही बेसिकली मैनकाइंड के लिए बना हुआ है. सॉरी, ठीक है, तो फिलेंथ्रोपी भी इसी से बना वर्ड है, राइट? फिलेंथ्रोप में यू लव द मैनकाइंड एंड मिसएंथ्रोप में यू हेट द मैनकाइंड, सो यू डू नॉट लाइक द अदर पीपल. एवर्जन कृतिका यूज कर सकते हैं. एवर्जन इज फॉर हेट. रिसेंट, एवर्जन, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं. डिटेस्ट कि आप दूर रहना चाहते हो ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है. कैलमनी, अनिमेश यहाँ पे नहीं लेते हम लोग. कैलमनी किसी को इंसल्ट करना हो जाता है या फिर किसी के बारे में अफवाहें उड़ाना, दैट इज कैलमनी, या बुरी बातें बोलना. वो इंसल्ट वाले जब वर्ड्स की कैटेगरी उठाएंगे वहां हम इसको ले लेंगे.
One word more we can take is despise. I'm sorry. To despise something is also to not like it, to hate. So despise, loathe, all of these are kind of near words. Abhor, जिसमें आप hate कर रहे हो चीजों को. Right, Ashutosh, we can take word enmity. Abominable या abominate भी ले सकते हैं, शुभी बिल्कुल ले सकते हैं. Abominate. Caustic and inimical, Ayushi and Madhuri, we can take these two words. your caustic के साथ बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे bitter हो गया या acerbic हो गया. इन सब का मतलब जो आपका बोलचाल का तरीका है वो बड़ा हेटफुल वाला है, right? Inimical we can call. Inimical is also hostile, and usually it is used to describe the conditions of place. Inimical circumstances, inimical condition. Usually it is not used to define people. Hostile is a word which is used to define people, right? But inimical usually circumstances या environment को describe करता है. Anathema नमन बिल्कुल हो सकता है, हमने already रख लिया है, right? Ayush, acerbic also. Abhorrence also, Ayush. We can take right with it, acerbic. Odious also, Naman, I think we have covered it. Right, we have taken it. Insipid, tasteless के लिए आ जाएगा ईशान. Something boring or tasteless is insipid. Aversion, Abhishek, I think we have taken the word. Resentment, resent का ही word है जो यहाँ हमने लिखा है, इसी में आप. Resentment is also किसी से दुश्मनी या hate. So you can keep this word here. Right, Prakhar, inimical we have taken. Hideous, hideous is बहुत बुरा कृत्य या crime जो होता है उसको hideous बोलता है. Like usually ये जो rape और murder वाले crimes होते हैं तो hideous crime की category में आता है, right? Antipathy शिखर हो सकता है, we have already taken that. Amiable, Jamesh, not sure which word you are putting over here. Sour झलक हो सकता है जो कि bitter और rainy की category में आ जाएगा. Caustic, bitter, acerbic, sour, इन सब का एक ही meaning है. Cold blooded होना या coldly behave करना किसी के साथ, that could also be taken. But cold में usually दोस्ती नहीं है, बस ये रहता है cold में. ठीक है, आप वार्मली किसी से जब मीट करते हो तो वार्म हो जाता है. When you give a lukewarm response to somebody, it's a cold meeting. Discord we can keep, where relationship is not cordial, it is discord. Right, Ayushi? Amiable तो opposite words में आ जाएगा ना, जब में friendly वाले words में आ जाएगा. Friction रख सकते हैं Ayushi, right? Mihir, inimical, aversion, all these words are taken. Ayush, enmity also we have taken. ठीक है, let me see अगर कुछ word रह गए हैं from the list, just a moment. Despise हम लोगों ने ले लिया था क्या? Detest also we have taken. हाँ, obnoxious रख सकते हैं आप इस list के अंदर. You can keep what? Obnoxious. Obnoxious is also something जो nauseatic है, जिससे आप दूर रहना चाहते हैं, जिसको avoid करना चाहते हैं, that is obnoxious. जिससे आप resent करते हैं, resent, obnoxious, they all are quite similar words. अब आप में से बहुत सारे words कुछ आप लोग बता रहे हैं जो कि नहीं आ सकते friendly या hate की category में, जैसे ग्याल है, ill natured है. ये सब देखिए, दो categories को mix मत करिए. आप लोग बहुत सारे words जो suggest कर रहे हैं, they should ideally come in the category of when you are not well behaved. जैसे churlish किसी ने बताया, ग्याल बताया, ये सारे वर्ड्स इंसॉलेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, इंसॉलेंट बिहेवियर, इनडेकोरस बिहेवियर, वेयर यू आर नॉट वेल बिहेव विद पीपल. ठीक है, आपका जो बात करने का तरीका है वो ऐसा है. ठीक है, हम जब उस कैटेगरी पे आएंगे तो हम इम्प्रूडेंट और इन सब वर्ड्स को पिक कर लेंगे. वहां पर दो कैटेगरी को मिक्स मत करिए, आपको उससे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा कि कौन से वर्ड्स वेल बी इल बिहेव्ड के लिए और कौन से वर्ड्स हेट और अनफ्रेंडली होने के लिए, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो मिक्स मत करिए, इसकी एक अलग कैटेगरी बनेगी. ठीक है, अब जैसे अपग्रेड आ गया, धीरज ने कहा, अब ये अपग्रेड भी विल कम इन द कैटेगरी ऑफ जहाँ पे आप क्रिटिसाइज या कुछ बुरा भला किसी को कह रहे हैं या डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो अपग्रेड उस कैटेगरी में चला जाएगा. राइट उधर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मिक्स मत करिए सारी कैटेगरीज को, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. भूरेश मोहम्मद इज सजेस्टिंग
रेटिसेंट किसी ने सजेस्ट किया है. आप लोग अलग अलग वर्ड्स को मत मिक्स करिए. रेटिसेंट इज इंट्रोवर्ट, not likely to speak to other people, which doesn't make you hateful or unfriendly person, right? You remember the example which we were doing for the text completion question, where we were talking about the American people with their neighbors are talking on, yani they talk to their neighbors very often, right? Live in close proximity, and British people or English people, they do not talk to their neighbors so often, which makes them what? Not unfriendly, not hateful people. तो रेटिसेंट को इस कैटेगरी में मत डालिए. रेटिसेंट जिसका शाय या इंट्रोवर्ट बिहेवियर है, वो है जो दूसरे लोगों से बात करने में टाइम लेता है. वन हू टेक्स टाइम टू ब्रेक द आइस. ऑब्नॉक्शियस से आप दूर भी रहना चाहते हो, यू विल हेट दैट पर्सन आयुषी. If somebody is obnoxious, you also hate them to the point. That's one meaning of it, where you would like to stay away from them. So that person could be annoying, could be pestering, but आप उसको इतना ज़्यादा hate करते हो. ठीक है, obnoxious situation को भी describe करते हैं, not just person, but obnoxious situation which you would like to avoid at all cost. You hate to face that situation. So in that way, it is related. It is similar to resenting something. Aversion, aversion में भी आप avoid करते हो, right? जो चीजें आपको पसंद नहीं है. मिसोजिनिस्ट नमन आ सकता है हेट की कैटेगरी में. वन हु हैज hateful feelings for women, for females. For that we can use word misogynist. We can take this word. So I think most of the words, just a moment, मैं अपनी लिस्ट एक बार चेक कर रहा हूँ कोई वर्ड अगर मिसिंग हो तो. Many we have taken. Discord is also there. Odious, have we taken the word odious somewhere? Odious भी हो चुका है. Odious, obnoxious, ये सब काफी क्लोज वर्ड्स हैं. मेलिग्नेंट उदित आ जाएगा इन द कैटेगरी ऑफ जहाँ पे किसी की इंटेंशंस खराब है, किसी के बुरे करने के लिए इंटेंशंस है, तो वो अलग कैटेगरी में आ जाएगा. देखो, कॉर्डियल में आप फ्रेंडली रहते हो समझ, राइट? डिस्कॉर्ड में आपके रिलेशंस कैसे हो चुके हैं? हॉस्टाइल हो चुके हैं, एक्रीमोनियस हो चुके हैं, नॉट फ्रेंडली रिलेशन हो चुके हैं. कॉर्ड से बना हुआ है ना, कॉर्ड से कॉर्डियल होता है समझ. कॉर्डियल में चीजें फ्रेंडली हैं, अच्छे नोट पे हैं. जब डिस्कॉर्ड हो गया है तो क्या हो चुका है? रिलेशनशिप फ्रेंडली नहीं रही है, हेट पे जा चुकी है, तो उसको हम डिस्कॉर्ड पे ले लेते हैं. मरोज है, मोहम्मद सैडनेस के लिए आ जाएगा. डिप्रेशन, सैडनेस, उसके लिए अच्छा वर्ड है मरोज. विल कम टू दैट कैटेगरी एज वेल. ठीक है, देखो सारे नेगेटिव वर्ड्स आपस में रिलेटेड नहीं है, तो नियर बाय वर्ड्स ऐसे आप अगर आप पिक करोगे तो हर वर्ड आपको आपस में रिलेटेड दिखेगा. वी हैव टू स्पेसिफिकली लुक फॉर दोज वर्ड्स व्हिच आर एक्चुअली मोर रिलेटेड विद द कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, हर नेगेटिव वर्ड इस कैटेगरी में नहीं आ जाएगा. ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट कैटेगरी. जस्ट अ मिनट. Now we'll talk about words which means to improve something. किसी चीज को बेहतर या अच्छा बनाने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, हम उस पे आ जाते हैं. Just a moment. Try to this. We can use word ameliorate. Sorry. Ameliorate is to improve a situation or things जो खराब हो रही हैं, उसको सही करना is to ameliorate. Right away we can use word mitigate. When there is a risk, you always try to mitigate it. So again you are trying to improve on a situation, right? Mitigating something is कि उसके बुरे effects को आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, जो उसका आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर मैथ आ सकता है. यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट रिस्क, सो इट इज मिटिगेटिंग, व्हिच इज अगेन ट्राइंग टू improve a situation, right? Adi, we can take ameliorate, which is already there. Meliorate also, Ayushi, we can take ameliorate. See, meliorate.
Right, Prakhar, ameliorate we can take. Right, Naman, mollify also we can take. To mollify something is also to provide a soothing experience. Right, check, placate, appease, pacify, all of these words can go. To placate is also किसी को मना लेना. Appease मतलब भी किसी को शांत कर देना. Right, and pacify is also किसी का गुस्सा कम कर देना is to pacify that. Refine shouldn't come in the category of, हाँ ठीक है, improve के लिए आप बोल सकते हो शुरू. To refine something, to refine. Then we can also take words like edify and enhance. In all these words, we are trying to improve something. To qualify, Ayushi, qualify for improvement. One qualifier is to make somebody eligible for something, and the second qualifier is. आप इसके second meaning पे जा रहे हो क्या आयुषी qualify के? Augment में तो संयम से बढ़ाना होता है किसी चीज को, improve नहीं है, वो सिर्फ increase of things है. When you're trying to increase something, that is augmentation of things. Alleviate आस्तिक ये वाला रख सकते हैं, not the one जो आपने लिखा हुआ है, उसकी spelling ये वाली होती है, alleviate. This word we can take right away. Mitigate we can take. Mollify, I think we have already taken. Vrinda says boosting something. Boosting हम confidence और उसके category में ले आएंगे. Bolster, boost, they are similar words. Enhance हम बिल्कुल रख सकते हैं, we have taken it. Lenify with it we can take. Lenify, mollify are near some. Embellish is just किसी को अच्छा decorate कर देना मान लो, ठीक है, कोई चीजों को या डिश को बहुत अच्छा डेकोरेटिव करके सर्व करना है, एम्बेलिश करना, ठीक है, तो वो डेकोरेशन से ज्यादा रिलेटेड वर्ड है. प्लकेट इशिता बिल्कुल रख सकते हैं, आई थिंक वी हैव टेकन दैट वर्ड. असौज आशुतोष बिल्कुल रख सकते हैं. असौज इज आल्सो अ वर्ड वी कैन यूज. आयुषी मिटिगेट रख सकते हैं, वी हैव टेकन द वर्ड. समर्थ मॉडिफाई नहीं रख पाएंगे यहाँ पे. नमन अले रख सकते हैं, बिल्कुल अले यहाँ पे हुआ भी नहीं है. सो अले द फियर्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू स्कीम टू अले द फियर्स ऑफ पीपल, टू रिड्यूस देयर एंजाइटी और फियर्स अबाउट समथिंग, राइट. सो अले द फियर इज द कॉमन, ये बहुत प्रेवलेंट सेंटेंस यूसेज है या इडियोमेटिक यूसेज है जो आपको बहुत जगह दिखेगा. सो पेसिफाई वी हैव टेकन. अले इज also the enhance हो चुका है शिखर. Right, Janmesh. Right, Ashutosh, pacify is there. Right, Naman, elevate also we have taken. Anushka, upgrade also we can. We can take for improve. Appease, Ashita, we have already taken. Soothe, we can take, Ashutosh. To soothe something is also to improve it. So we can take, right, Naman and Ashutosh. Soothing we can take. Contrite नहीं आना चाहिए Ashita. Contrite is repent या पश्चाताप करना अपनी किसी चीज का. Pacify कृतिका बिल्कुल आ सकता है. I think we have taken the word pacify. Refined also Madhuri. Mahima elevate we have taken. Astik upgrade also we have taken. Asoj is there. Mahima, Ale and Asoj are already there. Renovate yes इस category में नहीं रखते हैं अपन. Progress जन्मेश improve के लिए. Amend रख सकते हैं. To make amends is to make corrections on things, which is to improve something. So we can take word amend. Enhance, Astik we have taken. Propitiate, Ashutosh, good word which we missed. Propitiate. Propitiate मैंने आपको बताया भी कि usually it is used in the context of God, right? When you think that God is angry on you, and you're praying to God, so you're trying to propitiate them. उनका गुस्सा शांत कर रहे हो, उनको मनाने में आप लगे हो. That is propitiate. Extenuating, are you see? Extenuating for एक्सटेनुएट तो उनको बोलते हैं ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के लिए वर्ड एक्सटेनुएटिंग यूज होता है. आप एक बार चेक कर लो एक्सटेनुएटिंग का मीनिंग, ठीक है. मे बी देयर इज अ सेकंड मीनिंग व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ. अच्छा ठीक है, मैं गलत वर्ड से कंफ्यूज कर रहा हूँ.
एक्सटेन्युएटिंग आप सही कह रहे हो, इट कैन कम टू एक्सटेन्युएट समथिंग इज एक्चुअली किसी चीज का इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है. You can take word extenuate. Ameliorate aspect is already there. Amend and augment is there. Recuperate is to recover from something. It could be illness, or that recovery period is to recuperate. Improvement की category में रख सकते हैं शिखर. ठीक है, लेसन करने के लिए है, सही कह रहे हो मिहिर एंड आयुषी, बट वी आर पुटिंग कांस्टेंट ऑन समथिंग, हम उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम लेसन दी इंटेंसिटी वाले वर्ड्स को जरूर पिक कर रहे हैं, बट हर वो वर्ड जिसका मतलब टू लेसन समथिंग इज, दैट वुडंट बी एप्लीकेबल, राइट? इफ यू आर डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, उसमें लेसन वाले वर्ड्स आ सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने कुछ रखे हैं वर्ड्स जो किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करने वाले वर्ड्स हैं, राइट? आप जो लिमिट वाला कह रहे हो ना, क्वालिफाई का सेकेंड मीनिंग है टू लिमिट समथिंग या उसको लेस करना, तो सिर्फ इंटेंसिटी के लिए यूज नहीं होता है ना, वो बहुत और जगह पे होता है जहाँ पे आप चीजें नैरो डाउन कर रहे हो. अपीज हो सकता है, नमन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टेकन. अच्छा, एक qualify is to make less severe. If that is there, Ayushi, you can use the word as second meaning, qualify over here. Enlighten to improve, ठीक है, enlighten और edify दोनों लिए जा सकते हैं. Edify I think we have already taken. We can use word enlighten also for that. देख लेना उदित एक बार, आई थिंक आयुषी हैज चेक्ड इट समवेयर, आप लोग भी चेक कर लेना. अगर क्वालिफाई सीवियर किसी चीज की सिवियरिटी को लेसन करने के काम आता है तो आप रख सकते हो उस वर्ड को यहाँ पे. ठीक है, सिर्फ लिमिट करने के काम आ रहा है, रिड्यूस या लिमिट तो नहीं, लेकिन अगर किसी चीज की सिवियरिटी रिड्यूस कर रहा है तो वी कैन टेक दैट वर्ड. दैट्स व्हाई आई हैव पुट हियर फॉर कंसिडरेशन. आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा. Buttress is to provide support to something. Buttress, bolster, boost, all of these words are used to provide support to something. Palliate also we can use word. हम यहाँ palliate भी रख सकते हैं. Let me see what words we have missed. Just a minute. 45 हम वो support वाली category में रख लेंगे. अब है rectify, आप amend के साथ ले सकते हो. Rectify and amend, they both mean correcting a mistake which will bring improvement to things. So amend and rectify we can keep over here. Reconciliation, Pratika. Reconciliation is also kind of improvement, so we can take reconcile. Reconcile is where things have gone again to their normal stage. For example, your relationship with somebody has gone sour, bitter. Now again you have become friends, so you have reconciled with them. So yeah, we can keep that in the category of this word. Elevate to the रख सकते हैं. I think we have taken that word. We have already used the word elevate. ठीक है, मैं एक बार अपनी लिस्ट मैच कर लेता हूँ. We have, if we have missed any of the words. ट्रैंक्विलिटी में तो आयुषी, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस टू अ सिचुएशन, आप उस तरीके से यूज कर सकते हो. टू ट्रैंक्विलाइज, यूजुअली जैसे राइट्स या ऐसी सिचुएशन में यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस, तो वहां पे आप ट्रैंक्विल कर सकते हो. ट्रैंक्विल वैसे स्लीप और पीस के लिए यूज होता है, इन दोज टू वेज. तो ट्रैंक्विलिटी अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में, लाइक ट्रैंक्विलिटी वुड रिक्वायर अ कॉन्टेक्स्ट टू क्रिएट द इम्प्रूवमेंट. ठीक है, यूजुअली शांत करना या किसी को नॉर्मल स्टेज पे ले आना इज ट्रैंक्विलाइज, जो ट्रैंक्विलाइज में हम करते भी हैं. तो ट्रैंक्विलिटी इन दैट वे कैन बी यूज्ड. ठीक है, टॉकिंग अबाउट वर्ड एक्सनरेट, व्हिच इज यूजुअली द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज किसी को किसी ब्लेम से या गिल्ट से फ्री कर देना, एब्सॉल्व कर देना. ठीक है, किसी को आप, हाँ राइट आयुषी, फ्री फ्रॉम गिल्ट इज एक्सनरेट, which यूजुअली इम्प्रूवमेंट के केस में नहीं आना चाहिए. किसी पे कोई चार्ज लगा है या कुछ केस है जिससे उसको आपने बाहर कर दिया है, तो यू आर जस्ट एब्सॉल्विंग दैट पर्सन. ठीक है, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड विद इंप्रूवमेंट ऑफ द थिंग्स, राइट?
हेट वाले वर्ड्स हो चुके हैं, इम्प्रूवमेंट वाले वर्ड्स हो गए. विल कम टू अ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स व्हिच इज जस्ट उल्टे वर्ड्स उठा रहे हैं अब हम लोग. जैसे इम्प्रूवमेंट के वर्ड्स थे, नाउ वी आर पिकिंग अप वर्ड्स व्हिच मीन दी वर्सनिंग ऑफ थिंग्स. जब चीजें खराब चल रही हो या खराब होती जा रही हो, उसके लिए क्या वर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट वर्ड्स आर कमिंग टू योर माइंड? Chehk says it could be diminishing, exacerbate, Ayushi, right? Exacerbate, I think. किसी और कैटेगरी के लिए अभी किसी ने सजेस्ट किया था, बट इट वुड परफेक्टली फिट ओवर हियर. एक्सासरबेट होना यानी चीजों का खराब होते जाना, सिचुएशन का बिगड़ते जाना. तो इट्स अ परफेक्ट वर्ड जो वर्सन की कैटेगरी में आ सकता है, बुरे होने की कैटेगरी में आ सकता है. ठीक है, आप यहाँ पे और कॉन्टेक्स्ट भी लिख लीजिए. वर्सन इज इसका मतलब जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मतलब ये होता है सिचुएशन बिकमिंग बैड. ठीक है, सिचुएशन इम्प्रूवमेंट वाले वर्ड्स ये थे, किसी चीज में सुधार होना या सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट, उसके वर्ड्स ये थे. ठीक है, तो अब वर्सन वाली कैटेगरी कर रहे हैं जिसमें एक्सासरबेट वुड डेफिनेटली कम. डिमिनिश रिड्यूस के लिए यूज होता है चाहे, बट डिमिनिशिंग ऑफ व्हाट? महिमा एक्सासरबेट डिके बोल सकते हैं ना, डिके ऑफ थिंग्स. Kritika, exacerbate we have taken. Deteriorate prakar, we can take what deteriorate, which is often pronounced as by many people as deteriorate, but if you see the spelling, it starts with D-E-T-E, that means ditty and then rio, so it's deteriorate. So we can take this word because deteriorate is किसी का quality में गिरते जाना या खराब होते जाना. So situation becoming bad or things becoming bad पे it can perfectly go. Right, Ashutosh, we have taken the word exacerbate. Ruin हो जाना किसी चीज का बोल सकते हैं, going in the ruins. Ruin रख सकते हैं. Right, Ritika, exacerbate we can keep. Atrocious वर्सन के लिए आस्तिक डिबेस जरूर रख सकते हैं. सही, किसी चीज का डिबेस हो जाना यानी उसका गिर जाना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, in terms of characteristic, in terms of character also, debase हो जाना. Aggravate is a good word, Muskan, which we can use. Aggravate यानी किसी चीज का खराब होते चले जाना. ठीक है. Degenerate इशिता, वैसे तो करप्ट और उन लोगों के लिए होता है, पर डिबेस का वन ऑफ दी सिनोनिम्स है डीजनरेट. तो किसी इंसान का खराब होते जाना के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं डीजनरेट. व्हाट अदर वर्ड्स आप लोग कर रहे हैं? डिमोलिश वजह, ठीक है. ड्रेडफुल आस्तिक, ड्रेडफुल यानी डरावने के लिए रहता है ना आस्तिक. नमन सेज वेन, वेन बोल सकते हो आप. वेन इज ऑल्सो किसी का डिक्लाइन पे या रिड्यूस पे हो जाना. राइट, शिखर डिटीरियोरेट वी हैव टेकन. राइट, उदित वी हैव टेकन. अनुष्का वी हैव टेकन वर्ड एग्रावेट. कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम अगर आप शुभ कह रहे हो विद द कॉन्टेक्स्ट तो वो आ सकता है वहां पर. ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग वर्स, वहां पे आप रख सकते हो. डिक्लाइन रख सकते हैं चलत हम. ठीक है, देखिए बहुत सारे वर्ड्स जो बैड हैं उन सबको यहाँ पे मत ले आइए आप लोग. ठीक है, अभी हम सिर्फ वर्सन की बात कर रहे हैं, बट इसमें काफी सारे वर्ड्स आप लोग जो बोल रहे हैं दे विल नॉट बी फिटिंग दी कैटेगरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट. हम बोल रहे हैं जिसमें सिचुएशन बैड होती जा रही है, हम उसके वर्ड कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हर बैड वर्ड कैन बी रिलेटेड विद वर्सन. आप उसको कॉन्टेक्स्ट में यूसेज में भी देखिए क्या वो यूज होता है उस तरीके से. ठीक है, कुछ वर्ड्स मिस हो गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो वर्सन के लिए आप लिख सकते हैं. degrade, I think degrade somebody has already suggested, but we have, I think यहाँ पे लिखा है नहीं, तो we'll take the word degrade.
रिलेशनशिप का खराब हो जाना, उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे एम्बिटर होता है, सॉरी एम्बिटर, और सार हो जाना रिलेशनशिप का, सो रिलेशनशिप गोइंग बैड, उसके वर्ड्स हो जाएंगे एम्बिटर एंड सार। स्ट्रेंज हो जाना रिलेशनशिप का, दैट इज ऑल्सो रिलेशनशिप गोइंग बैड, एस्ट्रेंज, द स्पेलिंग इज दिस वन, ठीक है, स्ट्रेंज के आगे ई लग जाता है, दैट इज एस्ट्रेंज। और dilapidated कंडीशन में आ जाना शिखर, तो ruins के लिए ही एक अच्छा वर्ड हो जाएगा, लाइक अ बिल्डिंग विच इज dilapidated, जो जर्जर हो चुकी है। नहीं नहीं, ऑगमेंट नहीं आएगा, मैंने ऑगमेंट बताया कि ऑगमेंट इंक्रीज करना होता है, सिर्फ इम्प्रूव करना नहीं होता है, ऑगमेंट इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। फिर कुछ जैसे ईडम्स भी यूज होते हैं, जैसे गोइंग डाउन द ट्यूब्स, इफ समथिंग हैज गॉन डाउन द ट्यूब्स इट मीन सिचुएशन हाथ से निकल गई है, खराब हो गई है, ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। समथिंग गोइंग और हेडिंग साउथ इज ऑल्सो चीजों का खराब होते जाना। डिसग्रेस समर्थ किस चीज के लिए यूज करेंगे, समथिंग इज डिसग्रेस इट इज डिसऑनरेबल, राइट। अगर कोई चीज डिसग्रेस है तो इट विल ब्रिंग शेम। हाँ, डिसेंड आप कर सकते हो, असेंडिंग का अपोजिट डिसेंडिंग, जिससे बना वर्ड डिसेंड है, दैट वी कैन टेक अबे, so descend I think we can keep over here, which is opposite of ascending, descending जिससे बना word है, that we can take। devalue, debase, समर्थ, बिल्कुल आ सकते हैं ये वर्ड्स जिसमें चीजों को क्वालिटी में गिर जाना है, ठीक है। मैं एक बार लिस्ट चेक कर लेता हूँ, अगर कोई रेलेवेंट वर्ड हमने मिस किया है तो। डिक्लाइन के लिए एक ड्विंडल भी यूज होता है वर्ड, इफ सिचुएशन और थिंग्स आर ड्विंडलिंग दे आर लाइकली टू फॉल नाउ, ठीक है, तो थिंग्स हैव गॉन। हाँ, क्रम्बल भी बोलते हैं भाई, ड्विंडल एंड क्रम्बल यू कैन यूज। अब ये जो डेकाडेंट और ये सारे वर्ड्स हैं प्रखर, ये उसकी कैटेगरी में चले जाएंगे जहाँ पे पीपल आर मॉरली करप्ट, डिबॉचर, डेकेडेंट, डिबेस, राइट, ये सब वर्ड्स उसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, जहाँ पे आपके मॉरल वैल्यूज, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हो, तो वहां पे ये वर्ड्स चले जाएंगे। अब बेलिकोज आज तक यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ, हर निगेटिव वर्ड रिलेटेड नहीं है, इसलिए लुक एट दी वर्ड विच यू गाइज आर रिकमेंडिंग, कि वो वर्सन के लिए यूज भी हो सकता है कि नहीं, बेलिकोज के हम वर्सन के लिए यूज करेंगे आज तक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड बेलिकोज। पेरिशिंग वी कैन यूज प्रिया, पेरिशिंग फॉर समथिंग गोइंग बैड और रूइन, उसके लिए हम पेरिश यूज कर सकते हैं। बेलिकोज का मतलब बताओ आज तक कहाँ पे यूज होता है वर्ड। वॉर लाइक एग्रेसिव है ना, तो इट डिफाइंस अ पर्सन हु इज रेडी एंड ईगर टू फाइट, but वो वर्सन से कहाँ रिलेटेड है, if somebody is aggressive and eager to fight will hit somebody, that doesn't define situation becoming bad ना, ये तो वो वाली क्वालिटी में आ गया जहाँ पे लोगों का बैड टेम्पर्ड है, लोग इजिली किसी से फाइट करने पे आ जाते हैं, उस पे आ जाएगा, क्वारलसम पे आ जाएगा, चैट, राइट। सिचुएशन उसके बाद बनेगी आस्तिक बुरी, पर है थोड़ी, ये तो हम ऐसे करोगे सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं रिलेटेड मिल जाएंगे आपको, उसके बाद सिचुएशन बुरी हो सकती है जब उसने किसी पे अटैक किया और ये किया, और वो तो उसका फ्यूचर है ना सिचुएशन का, राइट नाउ द वर्ड इटसेल्फ इज नॉट डिफाइनिंग सिचुएशन गोइंग बैड, राइट। सैबोटैज, जेपरडाइज, शिखर, ये किसी चीज का रिस्क पे आ जाना, किसी चीज का रिस्क पे आ जाना या डेंजर में आ जाना, दैट इज सैबोटैज। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव डन मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स व्हिच मीन worsening of things. Last category, Astik, cranky is also for grumpy and complaining person. ठीक है, if somebody is cranky, they are irritable, गुस्से में हैं, irritated feel कर रहे हैं, उसके लिए word cranky यूज हो जाएगा। cranky, grouchy, grumpy, वो सब कैटेगरी है, ठीक है। देखो, हर नेगेटिव वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ो कि वो किसके लिए और कैसे यूज हो सकता है, नहीं तो हम सारे वर्ड्स को कहीं ना कहीं
हाँ, प्लंजिंग भी बोल सकते हैं पकड़, प्लंज भी किसी चीज का नीचे आ जाना होता है। तो वी कैन यूज, जहाँ पे अभी हमने ड्विंडल, क्रम्बल, प्लंज, ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आज की एक लास्ट कैटेगरी कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर, इसके लिए आपको काफी वर्ड्स पता होंगे, विच इज बोरिंग। इसको हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। इफ थिंग्स आर बोरिंग और रिपीटेटिव, तो उसके वर्ड्स क्या होते हैं? इफ थिंग्स आर रिपीटेटिव और बोरिंग, व्हाट आर द वर्ड्स फॉर दैट? राइट आयुषी, banal and quotidian, we can use both of these words. Banality in things is again boring or overused expression. Quotidian is something which keeps on repeating, which is something very normal. Quotidian concerns. That is how this word is used most of the times. Monotonous also, Shikhar, we can keep it, because monotonous also defines things which are repetitive, and that's why they are boring. Trite also means, trite we can keep. Chehek, placate तो नहीं आएगा. Platitude, I think you wanted to say. Monotonous, banal, and trite के बाद we can keep word platitude. Platitude is for something which is overly used expression. Banal we have already taken. Mundane is already taken, Naman. नहीं, mundane नहीं हुआ है. Sorry. We'll take the word mundane. Hackneyed expression, right? Me. Hackneyed can also come here. Prosaic style. If something is written in prose style or prosaic, it is boring. You will find it uninteresting. It's not creative. Right, Prakhar, trite can also be taken, and we have already taken the word, right? Krati, mundane is there. Vrinda, tedious also defines boring. Tedious एक तो बहुत किसी चीज का long होना होता है, long account of something or long process of something, and it also defines in a way that things are boring to do. So we can define that as tedious. Right, check. Platitude is the word. Perfunctory, right, Ayushi? Perfunctory tasks or perfunctory activities are those activities which you are doing but without any interest in them. They are boring activity. Obviously, nobody would do their dishes or dishwashing with a lot of passion and interest. Those could be defined as perfunctory activities. ठीक है, आपको अगर डिश वॉशिंग करना पड़े तो ये एक परफंक्टरी टास्क है जो आपको करना तो पड़ रहा है बट आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई टास्क इज बोरिंग. सो उसको हम परफंक्टरी बोल सकते हैं. टीडियस अनुष्का बिल्कुल बोल सकते हैं, वी हैव टेकन द वर्ड टीडियस. ब्लैंड फॉर बोरिंग बोल सकते हैं. फूड को भी डिफाइन करता है साक्षी. Prosaic Mihir, we have taken the word cliched Ayushi, right? If something is repetitive, we can use word cliched for it. Like cliched movie plots, which are very repetitive. एक जैसी स्टोरी, एक जैसी चीज दिखाई है जो आपने आज तक बहुत बार देख ली है, तो उसको हम cliched बोलेंगे. Hackneyed Ishita, we have taken the word. Mundane also by, right, Harshita? Mundane is there. Shikhar, platitude is there, right, Ashutosh? Everyday. ये वाला एवरीडे आना चाहिए आशुतोष की स्पेस वाला एवरीडे आना चाहिए? दिस वन और द स्पेस, एवरी एंड डे के बीच जो स्पेस आता है. इफ यू गाइस रिमेंबर इन द वोकैबुलरी सेशन आई टोल्ड यू everyday has two spelling. One is the space wala spelling and one is without space. So when I want to talk about something which is boring and ordinary, an adjective for that is this one, without space. And when I want to talk about something where I'm going on daily basis, for example, going to my office every day, in that case I'll use the everyday which is with space. Okay, so this everyday is an adjective which defines something which is ordinary. ठीक है, या जो रोज के बेसिस पे रिपीट होती है, ऐसी चीज को भी हम बोलते हैं. You guys are everyday people I meet, right? These are the everyday tools I've been using. Laptop has become an everyday tool for our lives. ठीक है, तो everyday is जो हर किसी के साथ हो रहा है. Nothing new about it, ordinary. Monotonous अनुष्का रख सकते हैं. Monotony, I think we have already taken the word. Humdrum थोड़ा sadness की तरफ आ जाएगा नमन. Morose, humdrum, all these words will take us to things which are sad.
ठीक है, वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ कह रहे हैं चीजें एक्साइटिंग नहीं है, हम उसके वर्ड्स पे आ गए हैं। व्हेन थिंग्स आर नॉट एक्साइटिंग, ये वो वर्ड्स हैं। अभी सैडनेस के वर्ड्स में हम इसको ले लेंगे, वो भी एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे ना, उसमें आपका हमड्रम आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो हमड्रम रूटीन इज ऑल्सो बोरिंग रूटीन, बट इसको हम सैडनेस पे रखें तो ज्यादा अच्छा है। कृति रिडंडेंसी इज समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। A redundant thing is not required is a redundant one, but kind of repetitive है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, if things are repetitive they can be called as redundant because they are not required. Insipid बोल सकते हैं for boring, फूड को भी डिफाइन करता है। और जब आप चीजों को इंसिपिड बता रहे हो तो दैट मीन्स दे आर बोरिंग। Astic monotonous we have taken, right Utkarsh cliche is also there, Pratika hackneyed is there, Sakshi pedestrian, right, pedestrian is the word we have not taken. So pedestrian multiple ways में use होता है, it defines that walkway also, जो फुटपाथ हम हिंदी में कहते हैं, not हिंदी, it is again an English word, but आम लोगों का जो रास्ता है उसको हम pedestrian कहते हैं। So pedestrian प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, पेडेस्ट्रियन कंसर्न्स भी हो सकते हैं, व्हिच मींस दे आर ऑर्डिनरी कंसर्न्स, दे आर हैपनिंग विद ऑल पीपल, और आम कंसर्न है वो। ठीक है, आम जनों के कंसर्न है, उसको भी हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। या किसी चीज की क्वालिटी को आप पेडेस्ट्रियन बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं बड़ी ऑर्डिनरी क्वालिटी। प्लैटिट्यूड मुस्कान ले चुके हैं, कृति रिडंडेंट बिल्कुल ले सकते हैं, जजून फॉर बोरिंग ले सकते हैं, मोहम्मद इंसिपिड का वन ऑफ दी सिनोनिम्स में आ जाता है। राइट, जन्मेज रिपीटेटिव ले सकते हैं। ओल्ड हैड कॉमन प्लेस बिल्कुल आ सकते हैं, ब्रोमेड आ सकता है। ओल्ड हैट शॉप वॉन कॉमन प्लेस, common place idea is something which is too repetitive in its nature, and bromide also we can take for this. Pedestrian झलक, मुस्कान mundane, tedious already आ गया है नमन। एनेमिक तो वीक हो जाएगा आशुतोष। एनेमिक इज जो फिजिकली वीक फील करते हैं उसके लिए वर्ड एनेमिक हो जाता है, या किसी परफॉर्मेंस को आप डिफाइन कर रहे हो तो दैट परफॉर्मेंस इज प्रीटी वीक, दैट इज एनेमिक वन। टाइम वन आ सकता है, यू सी शॉप वन एंड टाइम वन, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स कैन कम। शॉप वन वी हैव ऑलरेडी टेकन, टाइम वन हम रख लेते हैं। प्रोजेक्ट माधुरी वी हैव टेकन। डेरिवेटिव इज समथिंग नॉट ओरिजिनल, if something is derivative it is copied or inspired from some place। Samar, Siddharth hackneyed we have taken, with commonplace we have taken। Muskan, why fatuous, boring के लिए, tedious, हैरान boring speech के लिए बोल सकते हो ऋषि। complaining as well as boring, or people do not have interest to listen to it। rapid हम ले सकते हैं, right, you can take the word rapid। ठीक है, मैं एक बार लिस्ट चेक कर लेता हूँ, if missed on some word। टेम तो कंट्रोल करना हो जाता है भाई, एंड पॉन्डरस भी अलग वर्ड हो जाता है। कंफ्यूज मत करो आप लिस्ट को, चीजें वो हो जाएंगी। इनॉक्यूअस हो जाता है अस्तिक, जो हार्मलेस है। इनॉक्यूअस को हम बोरिंग कैटेगरी में क्यों लेंगे? इफ समथिंग इज इनॉक्यूअस दैट इज हार्मलेस। टेम इज कंट्रोल कर लेना किसी को। ठीक है, पॉन्डरस इज वॉकिंग को डिफाइन करता है, हैवी वॉक इज अ पॉन्डरस वॉक। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सारे रिलेटेड वर्ड्स को मत पिक कर लो, ऐसे बहुत दूर दूर के वर्ड्स आपको रिलेटेड दिखेंगे। ओनली द वर्ड्स जो एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं हम उनको पिक कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार लिस्ट चेक कर लेता हूँ, इफ वी हैव मिस्ड ऑन एनी ऑफ द वर्ड्स। We can even use word garden variety, which I think we have not taken here। Garden variety, just a garden variety tools. If electrician comes to your house, you'll find that he'll have the garden variety tools, which you'll find with every electrician। जो हर electrician के पास nut, पेचकस and all these things would be there, so that those are garden variety tools।
Latitude also I think we have taken. Country. Okay, so I think we have completed all the words which are related with boring and repetitive. And all the students who are finding it difficult to do it with flashcards, you can also use this particular strategy. But in this way, you will only be able to remember what category they belong to. You will not be able to understand the fine distinction. For example, I cannot use word mitigate and reconciliation, or maybe what are the other words. जब मैं mitigate यूज कर रहा हूँ तो उसके साथ में मैं placate यूज नहीं कर सकता mitigate की जगह पे. These are different words, right? Mitigate and placate cannot come in the same context. So mitigate is about risk को reduce करना किसी चीज की, या severity of the things को मैं reduce कर रहा हूँ, that is mitigating it, mitigating dangers, risk. But when I'm using word placate, what I'm trying to do is that somebody is angry on me, I'm trying to win them again, that is placating them. Propitiate, ये वर्ड्स प्लकेट और प्रोपिशिएट नियर सिनोनिम्स है. बट ये जो हम ब्रॉड कैटेगरी बना रहे हैं वो इसलिए ताकि आपको याद रह जाए कि ये किस कैटेगरी को वर्ड्स बिलोंग करते हैं, ये कहाँ यूज हो सकते हैं. सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पेयर्स इन द एग्जामिनेशन. बट यूजुअली दिस स्ट्रेटजी वुड नॉट बी सो हेल्पफुल इन योर टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चन फॉर द सिंपल रीजन they also demand you to know those fine distinctions between the words even in their synonyms. आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वर्ड्स कहाँ यूज हो सकते हैं. ट्रैंक्विलिटी कहाँ यूज होगा, रिकंसाइल कहाँ यूज होगा, वो फाइन डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए. ठीक है. आयुषी, आप बाय हार्ट जो करने हैं ना वर्ड्स, वो आप सिर्फ अपने बेसिक कॉमन एडवांस पे करो. उसके अलावा आपको बाहर से कोई वर्ड बहुत ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर दिख जाते हैं तो आप उनको करिएगा. याद रखने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड द लिस्ट ऑफ बेसिक कॉमन एडवांस वर्ड्स. ट्रस्ट नहीं, इससे बाहर आपका कहीं वोकैबुलरी नहीं जा रहा है. ठीक है. और मोस्टली इसमें हम जितने वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू विल सी दैट दे आर कमिंग इन योर बेसिक कॉमन एडवांस कैटेगरी. आपको एग्रावेट दिख जाएगा, डीजनरेट दिख जाएगा वहां पे, राइट. हो सकता है डिटेरियोरेट ना दिया हो आयुषी, बट इट्स अ सिंपल वर्ड व्हिच वी कीप हियरिंग सो ऑफन इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एवरीवेयर. ठीक है. तो बस आप स्टिक उसी पे करो और कुछ वर्ड्स आपके सुने हुए ही रहेंगे जो इधर उधर आपको दिख जाएंगे. कृतिका, एक बार लिस्ट पूरी हो जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है. वैसे आपके सेंटेंस इक्विवेलेंस में आपको दिख जाएगी एक कॉमन वर्ड्स की फाइल, सॉरी ग्रुप वर्ड्स की एक फाइल आपको दिख जाएगी. व्हेन यू गो टू योर स्टडी मटेरियल एंड लुक एट द सेंटेंस इक्विवेलेंस सेक्शन इन दैट द ग्रुप वर्ड लिस्ट इज ऑलरेडी देयर. ठीक है. और जब ये लिस्ट आप लोगों की सेशन की, इसलिए मैंने इस पे डेट डाल दिया है कि दिस इज फॉर द करंट बैच. ये जैसी लिस्ट पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे आपकी. ठीक है. So this is going to be very helpful in your sentence equivalence question, and trust me, if you can identify pairs, you can have 90% of the accuracy in sentence equivalence question. क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको पेयर आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देख के आपको सही पेयर को फिट करना है, which is too easy as a task. तो यहाँ एक्यूरेसी हाई रख सकते हो आप. ठीक है. रेस्ट ऑफ द कैटेगरी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन ऑन Wednesday. And I think it will take 1 or 2 more classes to complete the category. Then we'll move to the sentence equivalence practice questions. चलिए मिलते हैं हम लोग day after tomorrow. Thank you so much for attending the class. I'll see you on Wednesday.